this session we will discuss different type of SQL commands. So before going to the different type of SQL commands, first of all see what a MySQL and SQL are. MySQL is a DBMS software, database management system software, which we will use for creating and maintaining the relational databases. We will work with relational databases, and for its maintenance and creation we will use a platform MySQL DBMS. Just like we have used Python interpreter for creating a program by using a particular type of programming language, that is Python. Now SQL, it is a structured query language which we will use for creating and maintaining the databases, relational databases. So just like we have used Python programming language for writing the codes programs, in case of database we will use SQL, structured query language, and these SQL commands, or you can say SQL queries, we will write it in MySQL database management system software. Basically just like we have written Python codes in Python ideally, so in the same way we will write SQL queries in MySQL database management system software. And there are different type of SQL commands. So in the next slide I will show you the different type of SQL commands. Basically what are the SQL commands? They are just the instructions used to communicate with database. There are two different type of SQL commands: DDL, data definition language, and DML, data manipulation language. DDL commands are used in case when we work with structure database, or you can say schema of a database. DML commands are used when we work with the records or data present in a database. In DDL we have create, alter, drop, these type of commands, and in DML we have select, delete, update, these type of commands. We will write all these different type of commands in MySQL. So before going to the MySQL software in which we will write the SQL commands, see the different type of data types available in MySQL, because these data types we will use while creating the tables. So first one is a numeric data type having integer, small int and float. Another is date and time data types. The format of date is, first of all you need to write the year, after that dash, then give the month, dash, after that give days. In the same way for time, first of all write hours, colon, then minutes, colon, then seconds. Third is string or text data type, in which we have two options, varchar and char. Char is a fixed length string and varchar is a variable length string. What is the syntax for creating a table? Create table, after that give the table name. जो भी टेबल का नेम होगा वो हम देते हैं. After that within parenthesis give the name of the column. First हमें देना होता है column name, then after that give the data type of column, मीन्स पार्टिकुलर किस टाइप की वैल्यूज़ जो हैं इस कॉलम में स्टोर होंगी. आफ्टर दैट कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किए, वो हम अभी देखेंगे. कंस्ट्रेंट्स, एक कॉलम के लिए हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, कॉलम का नेम, उसके बाद उसका डाटा टाइप क्या है, एंड देन उस पर कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं. कॉमा देने के बाद अगेन यू कैन गिव द सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो. फिर आप जितने भी कॉलम्स आप देना चाहते हैं, फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है, तो आप कॉलम्स देती रहिए. उसके बाद सेमीकोलन लास्ट, एंड देन फॉर एग्जांपल ये तो आपका सिंटेक्स हुआ. सपोज योर टेबल इज़, टेबल का नेम जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिया हमने, स्टूडेंट का ही बनाते हैं. तो ये स्टूडेंट की अगर टेबल बनानी है, फर्स्ट टाइम में मैंने उसको दिया दैट
फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ द स्टूडेंट। एंड अब देखिए इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, यू कैन गिव कैर डेटा टाइप ऑफ दिस नेम एंड यू कैन ऑल्सो गिव अनदर डेटा टाइप विच इज वेर कैर। सपोज आपने कैर डेटा टाइप दिया है, ठीक है, एंड कंस्ट्रेंट लेट अस अप्लाई द कंस्ट्रेंट दैट नॉट नल मीन्स इट्स वैल्यू कांट बी नल। अभी के लिए हमने जस्ट एक कॉलम क्रिएट किया है, यू कैन क्रिएट एज मैनी कॉलम्स एज यू वांट अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स। इसी सिंटेक्स को फॉलो करके आप जितने भी कॉलम्स बनाना चाहते हैं अपने टेबल में बना सकते हैं। नाउ यू वांट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, सो फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड अनदर क्वेरी इज इंसर्ट इनटू, जो हमें टेबल नेम देना है, देन टेबल नेम इज इन दिस केस इज स्टूडेंट, सो यू विल राइट स्टूडेंट विद इन पैरेंथेसिस गिव द कॉलम नेम। इसमें हमने जस्ट एक ही कॉलम क्रिएट की है, सो आई विल गिव ओनली फॉर वन कॉलम नेम that is name. After that write values within parenthesis and then semicolon for stopping your query, terminating in the query. Then after that within parenthesis give the name, suppose the name is Ram. So in Ram how many characters are there? Three. And how many space you have allocated for name? 10. Space allocated for name. Name can be any ना, कोई भी नाम हो सकता है, any name can be given as a while inserting the row. So space allocated for this one is 10. It means how many beds, how many locations will be empty, जो यूटिलाइज नहीं होंगी, कितनी बची है आपके पास? 7। जो कैर है इट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ डाटा टाइप, फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग होगी। इट मीन्स कि जो 7 कैरेक्टर, जो 7 स्पेसेस हैं आपकी मेमोरी के, वो ऑक्यूपाई हो गए और आप उसको फ्री अप भी नहीं कर सकते। तो अनयूज्ड आपके पास लोकेशंस जो बची हैं दैट इज़ 7। मीन्स फर्स्ट लोकेशन पे आपने आर इंसर्ट किया, देन सेकंड पे ए आया है, थर्ड पर एम आ गया, बाकी के जो ये बचे हुए हैं इन लोकेशंस पे आप कुछ इंसर्ट भी नहीं कर सकते। मीन्स आप ये बोल सकते हैं 7 लोकेशंस आर अनयूज्ड। अनयूज्ड है ना, इसको फ्री अप भी नहीं किया कि कोई और यूज़ कर लें, हम किसी और को स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज़ करें, तो हम फ्री अप भी इसको नहीं कर सकते। इन केस व्हेन यू गिव डेटा टाइप कैर 10, इन दिस केस unused space is unused space is 7। अब मैंने सेम लिया है इसी को, इसमें बस मैं क्या चेंज करना है मुझे, सिर्फ कैर की जगह वेर कैर लेना है डाटा टाइप। सेम कॉपी किया है वहाँ से, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम लिया है। अब वेर कैर की जगह कैर की जगह वेर कैर लिखते हैं, तो वेर कैर लिखा 10, बाकी सारा सेम है। इंसर्ट भी हम राम ही सपोज कर रहे हैं, तो 3 कैरेक्टर्स है राम में, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देखिए अब क्या होगा, आपके पास ये हुआ, यहाँ पे आर, यहाँ एम ए और यहाँ एम स्टोर हो गया। बाकी के जो ये 7 हैं, ये 7 जो स्पेसेस मेमोरी के हैं, ये सारे जो स्पेसेस है वो फ्री अप हो जाते हैं। मतलब अगर यूज़ नहीं है, अनयूज्ड नहीं है, तो ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट है। तो इस स्पेस को हम किसी और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनयूज्ड स्पेस क्या है? अनयूज्ड स्पेस इस केस में 0 है। तो ये डिफरेंस है कैर और वेर कैर में। इसलिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं वेर कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर द स्ट्रिंग्स। ओके, सो आफ्टर डाटा टाइप्स मूव ऑन टू द कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि अभी देखिए, अभी मैंने बताया दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉलम यू नीड 3 थिंग्स।
तीन चीज़ें आपको चाहिए. फर्स्ट इज नेम ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम देना है. देन सेकेंड इज डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम एंड देन थर्ड वन विल बी द कंस्ट्रेंट अप्लाइड ऑन दैट कॉलम. तो एक कॉलम को क्रिएट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट. तो डाटा टाइप्स हमने अभी देख लिया, अब कंस्ट्रेंट्स पर आइए.